Hi, hello, welcome to your channel Change for Jivan. Yesterday, my dear viewers, we have studied the concept of management. I hope you are very much clear with the concept of management because in detail I have told what is management, why it is important, and how it is playing a very important role in the success of organization. So yesterday we have discussed on all these things. So today we are going to discuss the characteristics of management. Yes, my dear viewers, today we are going to discuss the characteristics of management. So yesterday, as I told, management is nothing but management of all the activities. लेकिन a management of all the activities, it is not that easy. That's the reason you have to plan, implement in a proper way. Then only what will happen, the management will be very much successful, or whatever you are planning, it will be implemented in the proper way. But management, as I said, it is not easy. So there are a couple of points like how management will work exactly in the organization that we are going to discuss. So today's topic of this video is characteristics of management. So let's start one by one. There are 7 characteristics. So we'll be going to study 7 different characteristics. Remember one more thing, my dear viewers, we are going to give you the printed notes. But before that, I am explaining you unit number 1. Why? Because for your PUC second year, unit number 1 is very important. It is like a base of entire book. If you understand, अगर आपको यूनिट नंबर 1 यहाँ पे समझ में आ गया है, अगर आपको यूनिट नंबर 1 समझ में आ जाता है, तो वट एवर यूनिट्स आर देयर 7 8 10 जितने भी यूनिट्स हैं वो आपको बहुत इजीली आप क्या कर सकोगे कनेक्ट कर पाओगे. दैट्स द रीजन आई एम फोकसिंग ऑन यूनिट नंबर 1. दैट्स द रीजन आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटेडली आई एम टेलिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट के ऊपर ही आपका पूरा का पूरा बिजनेस स्टडीज का जो बुक है वो उसके ऊपर रिलेट है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. So the first characteristics of management is a goal-oriented process. Management is a goal-oriented process. Now, as we have, yesterday's video में we have discussed, management is an goal-oriented process. Yesterday's in video, I have told you, management जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग फॉर एन ऑब्जेक्टिव. हर एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, उसका एक गोल होता है. इफ यू वांट टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव और दैट गोल, व्हाट इज इंपॉर्टेंट? मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट. इफ यू डोंट हैव अ प्रॉपर मैनेजमेंट, अगर आप उसको ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, अगर आप अपने बिजनेस को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, जो आपका प्लान है उसको आप ठीक से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, जो आपका प्लान है उसके अनुसार अगर आपका काम ठीक से नहीं हो पा रहा है इन द ऑर्गेनाइजेशन, देन यू कांट एक्सपेक्ट योर ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द एक्सपेक्टेड गोल. दैट्स द रीजन मैनेजमेंट इज एन गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. इफ यू वांट टू अचीव द गोल, आपको मैनेजमेंट ठीक से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा. आपको ऑल द एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन क्या करना पड़ेगा, ठीक से आपको मैनेज करना पड़ेगा. देन ओनली आप क्या कर सकते हो, आपका जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, दैट यू कैन अचीव. सो द फर्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. अगर आपको गोल अचीव करना है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, आपको मैनेज ठीक से करना होगा ऑफ ऑल द एक्टिविटीज. दैट्स द पॉइंट नंबर 1. नाउ कम बैक टू we're going to study point number 2 of characteristics, that is management is all pervasive. Management जो है, it is not only a concept which is there in our country. As I said yesterday's video, जो management concept है सिर्फ अपने देश में या सिर्फ small scale industries में या medium scale industries में, large scale industries में नहीं होता है. It is applicable throughout the world. हर एक इंडस्ट्री में, हर एक देश में क्या हो रहा है, मैनेजमेंट को आपको यूज करना ही पड़ेगा. मतलब इट इज यूज्ड बाय ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट मे बी एन इंडियन कंपनी, वेदर इट मे बी एन एमएनसी. हर एक ऑर्गेनाइजेशन इसको क्या कर रहा है, यूज कर ही रहा है. व्हाई? बिकॉज यही एक एस्पेक्ट है जो आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव आपको लेकर आके देगा. दैट इज कॉल्ड एज, जितना अच्छे से आप बिजनेस को मैनेज करोगे उतना आपका रिजल्ट अच्छा आएगा. सो इट इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू वन पर्टिकुलर कंट्री, नो, इट इज इंप्लीमेंटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड. सो मैनेजमेंट विल बी देयर थ्रू आउट द वर्ल्ड. दैट्स द पॉइंट नंबर 2. Now we are going to study point number 3, that is called as management is multidimensional. Management is multidimensional. It is not related to one single organization. It means it is not related to one single you can say activity. It is a very complex aspect. Management जो है ये सिर्फ एक एक्टिविटी को रिलेटेड नहीं करता इन द ऑर्गेनाइजेशन. Yesterday also I told management will be there, or management concept will be there in every single department. There are various departments in the organizations, whether it may be various departments. I told yesterday, finance department, marketing department, HR department. हर एक डिपार्टमेंट को क्या करना पड़ेगा, अपना जो भी वर्क होता है उसको ठीक से मैनेज करना पड़ेगा. Now there are different dimensionals. It is very complex. मैनेजमेंट को उतना इजी नहीं है. It is not an easy concept. चलो सोच लिया और इंप्लीमेंट कर दिया, सक्सेस आ गया. It is not that easy. इट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. तो इसको हमको बहुत प्लान करके क्या करना पड़ेगा, एवरी सिंगल एक्टिविटी को हमको मैनेज करना पड़ेगा. नाउ मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मल्टी डायमेंशनल में 3 पॉइंट्स आते हैं. वन इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क, जो भी आपका काम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में वो ठीक से हो रहा है नहीं है, दैट यू नीड टू सी. दैट इज आल्सो कॉल्ड एज मैनेजमेंट. जो भी आपका काम चल रहा है कंपनी में, यू हैव टू गो एंड सी, इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, उसको सुपरवाइज करना पड़ेगा. जो भी आपका काम है वो ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि काम अगर ठीक से नहीं होगा तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा. आपको जो भी मार्केट में डिमांड्स आ रहे हैं, टारगेट जो आपको मीट करना होता है, वो टारगेट आप रीच नहीं कर पाओगे. सो यू हैव टू सी दैट मैनेजमेंट ऑफ वर्क. दैट्स द फर्स्ट पॉइंट, वेदर इट इज हैपनिंग प्रॉपर्ली और नो. पॉइंट नंबर 2, मैनेजमेंट ऑफ पीपल. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर व्यूअर्स.
पीपल आर नथिंग बट एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशंस। जितने एम्प्लॉइज आपके चार्ज अप रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, उतना आपको बेस्ट देंगे। एम्प्लॉइज आर कॉल्ड एज बैकबोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये लोग चार्ज अप नहीं है, इनके प्रॉब्लम्स को अगर आपने डील नहीं किया, सॉल्व नहीं किया, देन दे आर नॉट possibilities are then they may not give their 100%, and if they don't give their 100%, then how can we expect the better performance from the employees? That's the reason you have to go meet, you need to understand what are the problems facing by the employees, and we have to try to solve the problems of the organizations. So kaise kaam chal raha hai, that's the first point. Second point, you have to take care of your employees, whatever the problems they have, वो problems को क्या करना है हमको solve करना पड़ेगा. Third is management of operation. Point 3 में 3 point है that we are discussing. One is management of work, second is management of people, third is management of operation. Now we are manufacturing a commodity. Operations में we are manufacturing a commodity, but this commodity has to manufacture with certain standards. जो भी हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट क्या होगा, मार्केट में जाएगा. सो जो प्रोडक्ट हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो ऑपरेशन हमारा चल रहा है कंपनी में, वो क्या होना है, इट हैज टू बी अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड सेट बाय द रिसर्च. इट हैज टू बी सेट बाय द मार्केट. जो भी मार्केट की रिक्वायरमेंट्स है उसके अनुसार क्या करना है, आपको उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है. इफ यू वांट टू मैन्युफैक्चर इनोवेटिव प्रोडक्ट, इफ यू वांट टू मैन्युफैक्चर अ कमोडिटी व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर, दैट टाइम यू नीड टू प्रोवाइड देम अ प्रॉपर और मॉडर्न मशीनरीज. आपको अच्छे क्वालिटी के रॉ मटेरियल्स देने पड़ेंगे, तभी जाकर आप क्या कर सकते हो, एक अच्छा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर यू कैन डिलीवर द प्रोडक्ट टू द मार्केट. और जो आपको रिक्वायरमेंट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से आपका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, ऑल दिस थिंग्स आर कमिंग अंडर पॉइंट नंबर 3, दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन. सो 3 पॉइंट हो गए. नाउ वी आर मूविंग अहेड टू द पॉइंट नंबर 4, दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस. यस माय डियर स्टूडेंट व्यूअर्स, मैनेजमेंट जो है इट इज नॉट अ डे और अ 2 डे एक्टिविटी. ये 1 या 2 दिन का एक्टिविटी नहीं है. जब तक आपका बिजनेस रहेगा तब तक ये मैनेजमेंट प्रोसेस आपको इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा. यू कांट बी लीनियन. आप ये नहीं कह सकते ओके माय बिजनेस इज नाउ सेटल डाउन, ओके पापा मेरा बिजनेस सेटल हो चुका है, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू इंप्लीमेंट दिस. मैनेजमेंट जैसे चल रहा है वैसे चलाने दो, ज्यादा हम लोग दिमाग यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं करेंगे. इट इज नॉट गोइंग टू वर्क माय डियर व्यूअर्स. जब तक आप बिजनेस कर रहे हो तब तक आपको क्या करना पड़ेगा, आपके बिजनेस को आपको ठीक से मैनेज करना पड़ेगा. जितने भी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स है, प्रिंसिपल्स है, इसके अनुसार ही आपको अपना बिजनेस करना पड़ेगा. आप यहाँ पे ग्रांटेड नहीं ले सकते किसी भी एक्टिविटी को. बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मैनेज करना, क्योंकि मार्केट जो होता है एवरी टाइम इट इज चेंजिंग, रिक्वायरमेंट चेंज होते रहते हैं, एक्सपेक्टेशंस ऑफ द मार्केट यूज्ड टू बी चेंज. तो उसके अनुसार क्या करना होता है, आपको अपने मैनेजमेंट को चेंज करना पड़ता है. सो इट इज एन कंटिन्यूअस प्रोसेस. इट इज नॉट अ डे और 2 डे एक्टिविटी, इट इज एन कंटिन्यूअस प्रोसेस. क्योंकि बिजनेस आप जब स्टार्ट कर रहे हो, ये सोच नहीं रहे हो कि मेरे को आज मैं शुरू कर रहा हूँ, आफ्टर 1 मंथ आई एम गोइंग टू स्टॉप माय बिजनेस. नो, व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर बिजनेस, योर एम इज टू टेक योर बिजनेस थ्रू आउट द जनरेशन. बहुत सालों तक आपको लेके जाना होता है. अगर आपको बहुत सालों तक लेके जाना होता है, देन मैनेजमेंट इज एन कंटिन्यूअस प्रोसेस. ये आपको समझ लेना पड़ेगा. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इज as management is a group activity. It's very important. Management जो है, it is not a activity or not a work of one single person, one single department. No, it is an activity of all the people who are working in the organization. It is an activity of all the departments which are there in the organization. किसी एक व्यक्ति का एक काम नहीं है, किसी एक डिपार्टमेंट का काम नहीं. डिपार्टमेंट I said in my previous video, there are a lot of departments. Research and development department, market research department, manufacturing department हो या sales department हो, उसके अलावा then it is the finance department. There are a number of departments. All the department has to work for one single objective, that is called as achieving the target, achieving the objective. अगर उस objective को अगर आपको gain करना है, then all the departments need to work together. हर एक डिपार्टमेंट को पता होना कि दूसरे डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है. If you can't work according to your own wish and will, it has to be an collective activity. आपको एक chain में काम करना पड़ेगा, then only you can achieve the objectives of a organization. So it is a group activity, it is not an individual work. Then next is management is a dynamic function. My dear viewers, it is very important. Management is a dynamic function. See, आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया, आपका एक प्लान होता है, okay, we are going to manufacture this commodity and we are going to sell this. ओके 6 मंथ तक जो भी आपने मैन्युफैक्चर किया इट विल गो वेल. लेकिन 6 महीने बाद जब एक कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है, जब उसके एक्सपेक्टेशंस चेंज हो जाते हैं, जब मार्केट का डिमांड रिक्वायरमेंट जब चेंज हो जाता है, यू कांट से नो दिस इज माय प्लान, आई वांट टू डू माय बिजनेस इन दिस फैशन ओनली. यू कांट से लाइक दैट. आपको अपना बिजनेस अकॉर्डिंग टू द मार्केट रिक्वायरमेंट्स आपको चेंज करना है. अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू मैनेज योर बिजनेस एंड यू नीड टू मैन्युफैक्चर द कमोडिटीज. यू कांट से दैट नो आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई सेल्फ, मैं ऐसे ही रहूंगा. नहीं, यू हैव टू चेंज according to the requirements of the market. That is called as management is a dynamic function. According to the requirement of a market, according to the requirement of the customers, आपको अपने प्लानिंग में चेंज करना पड़ेगा, आपको अपने मैनेजमेंट स्टाइल में चेंज करना पड़ेगा. आप एक ही तरह से अपनी मर्जी के अनुसार आप बिजनेस नहीं कर सकते. आपको बिजनेस मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अनुसार आपको बिजनेस करना पड़ेगा. That is called as point number 6, and that is management of business. Management is a dynamic function. Now last characteristics which is very important. Management is an intangible force. ये मैनेजमेंट जो कॉन्सेप्ट है, इट इज इंटेंजिबल. ये आपको दिखाई नहीं देगा. ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट आपका कोई व्यक्ति होता है, ये आपको कब फील होगा, ये आपको कब फील में आएगा, जब आपको रिजल्ट मिलेगा, अच्छा या बुरा. रिजल्ट में भी गुड और बैड.
अगर रिजल्ट अच्छा आ गया देन यू आर सेइंग दैट मैनेजमेंट इज गुड, अगर आपका रिजल्ट खराब आ गया तो देन यू आर सेइंग मैनेजमेंट इज बैड। तो ये मैनेजमेंट जो होता है इट इज नॉट टेंजिबल, ये इनटेंजिबल होता है, लेकिन इसके वजह से ही आपका बिजनेस या तो सक्सेस होगा या आपका बिजनेस फेल्यूर होगा। ये कोई व्यक्ति नहीं है, जो आप मिलकर जो काम कर रहे हो उसका एक आउटकम होगा, दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट। इफ रिजल्ट्स आर गुड, इफ यू आर जनरेटिंग revenues, if you're generating profits, if you're expanding your business, that shows that your management is very good. If your profits are decreasing, if you're losing the customers, then it is part of lack of proper management. So I hope you might have cleared a very important concept that is called as characteristics of management. With this video I am very much sure कि आपका मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट का नॉलेज और ज्यादा इंक्रीज हुआ होगा। सो आई एम वेरी मच श्योर जब आपके पास नोट्स मिलेंगे आप बहुत इजीली उसको कोरिलेट कर पाएंगे। विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।